So up to 8 pack room we have discussed, right? So now we have conference room. Control C, opening Excel file. Control V. Area will be PL enter polyline. LI enter list. How much area is coming? 424. 424. And number of people will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, right? Yes. So here I'm going to input 17. Then CFM per person will be I'm taking 7.5 and 0.12 I'm taking. Actually, these two values you have to select from your ASHA sheet, right? As per sheet. Yes, as per sheet you have to take. But here for our calculation, I'm going to take 7.5 and 0.12. And then after conference room, we have training room. PL enter polyline. Here to here. Total area I am going to take. LI enter list. How much is coming? 474. 474. Number of people will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Training room will be 16. And this one I am taking 10, 0.06. So this values actually I am taking approximately. After training room, I have workstation. So workstation here and here, people will be same only. For what I am doing, workstation control C here, enter. Area will be control C here I am taking. Number of people will be 60. This enter thing I am copying. Workstation completed. Then we have 4 pack. Here 2 4 pack we have. Already 4 pack we have done. So that same only I am going to copy. Four pack also we have done. And remaining we have reception we have right here. PL enter polyline. LI enter list. How much is coming? Okay. 272. It will come 272.
Number of people will be 1, 2, 3, 4, 5. 5 people. 5. This one I am going to take 10 into 0.6. For that, we have coffee table here, right? Control A, Control C. And tables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Coffee table, people will be 16. So 7.5, 1.2, I'm copying here. And coffee table area will be PL enter polyline. LI enter list. So coffee table, how much is coming? Square feet? 688. 688. And anything we missed it? This corridor we have missed it. L enter polyline. L enter list. How much area will be? 482. 482 corridor. Number of people we are going to find 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. This I am going to take here. हेलो नहीं काफी पहले करा है मैंने फोन Just take a look here. Any room कोई we have बात missed नहीं it? कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात सर अभी मैं काम कर रहा हूँ कुछ ठीक है बात Any room we missed it? देखो एक बार. मैंने कहा है दिख रहा है सभी लोग को? हाँ कुछ रूम मिस किया है क्या? एक बार टेक से. रिसेप्शन रिसेप्शन हो गया ना? हो गया। एच रूम एंड इलेक्ट्रिकल रूम ये जो रूम इलेक्ट्रिकल रूम के लिए तो हम एसी नहीं देते ना. वेंटिलेशन तो देता अच्छा एच रूम का मतलब होता है. एग्जॉस्ट देंगे सर, एग्जॉस्ट तो देंगे सर। नो अभी हम वीआरएफ कर रहे हैं ना. ठीक ठीक सर, ओके ओके। ओके तो अभी वीआरएफ का मतलब होता है कि वन इंडोर यूनिट नंबर ऑफ वन आउटडोर यूनिट नंबर ऑफ इंडोर यूनिट्स. ओके. कुछ रूम मिस हुआ है या नहीं? एक बार ठीक से चेक कीजिए. सर टॉयलेट में एसी नहीं लगाते ना भैया. सर कहीं नहीं लगा सर इलेक्ट्रिकल रूम में तो आएगा ना ये। इलेक्ट्रिकल रूम इधर इलेक्ट्रिकल रूम में एसी लगाते? नो सर नहीं इलेक्ट्रिकल रूम तो जिस पैनल लगाते हैं हमारा जो भी कंट्रोल पैनल है पैनल में बस फैन लगे होते हैं सर, एग्जॉस्ट फैन बस। सर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए ऐसे भी लगा सकते हैं।
एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए हीटर ना हो, इस वजह से एसी भी लगा सकते हैं किसके लिए? पैनल के लिए। हाँ, तो आग लगेगी, सब जगह फैल जाएगी। आप थोड़ा माइक ना सामने रख के बात कीजिए। सर कंटिन्यू कीजिए, सर कंटिन्यू गो अहेड कंटिन्यू। तो कोई रूम मिस नहीं किया है ना? नो सर। एक्सेल फाइल ओपन कर रहा हूँ। अभी देखो, इक्विपमेंट सिलेक्शन एंड सेलेक्टेड टीआर, ये दोनों इसको बोलते हैं कि इक्विपमेंट सिलेक्शन। EQI मतलब इक्विपमेंट, EQI मतलब इक्विपमेंट। अभी वर्कस्टेशन के लिए कितना टन है हमारा एज पर डिजाइन, एज पर कैलकुलेशन? 17.8 18 यस, 17.9। 17.9, right? So for the 17.9, when we are going to select our equipment, most probably we have to take higher than whatever we are getting, उससे ज्यादा लेना चाहिए। अभी इक्विपमेंट सिलेक्शन मतलब, अभी यह है हमारा वर्क स्टेशन, राइट? सारा सा सारा, इसमें सिर्फ एक ही यूनिट लगा सकते हैं हम। इसमें तो नंबर ऑफ यूनिट लगाना पड़ेगा, इधर कैसेट एसी, स्प्लिट एसी, वॉल माउंटेड एसी, फ्लोर माउंटेड एसी, जो भी हो। तो लगाने के लिए कितना यूनिट कितना लगाना है वो तो हम सेट करना है। अभी देखो, मार्केट में हमको मिलता 1 टीयर, 1.5 टीयर, 2 टीयर, 2.5 टीयर, 3 टीयर, 3.5 टीयर भी मिलता। लेकिन जब आप VRF कर रहे, मैक्सिमम 2.5 टीयर तक ले लीजिए, क्योंकि अगर 2.5 के ज़्यादा ले लिए तो जहाँ पे आपका यूनिट प्लेस किया है वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग हो जाता, तो उधर सराउंडिंग्स में जो भी बंदा है वो शिवरिंग फील होता। समझ रहे? तो दोबारा बताना क्या हो जाएगा? शिवरिंग, क्या? शिवरिंग, ठंड। ठंड, ठंड ज़्यादा हो जाता। अच्छा अच्छा। अगर अबाउट 2.5 टीआर होने के बाद क्या होगा था, अभी देखो ड्राइंग में बताता हूँ मैं आपको। सर 17.9 है तो 2.5 से क्या प्रॉब्लम है? देखो इधर मैं एक 2.5 टीआर का यूनिट लगा हूँ, समझे? इधर 2.5 टीआर का यूनिट लगा हूँ, इसका यूनिट कैपेसिटी में भी यहाँ तक होता, यहाँ तक हो तो कंपेयर टू दिस पर्सन एंड दिस पर्सन, किसको ज्यादा ठंड होगा? तो सामने है उसको। जो बंदा नजदीक है उनको ज्यादा ठंड हो जाता, सही है ना? तो इसके लिए रेकमेंडेड है कि 2.5 टीआर से ज्यादा मत लो VRF में। तो वो है सिलेक्शन। अगर इधर 17.9 है तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2.5 टीआर का, 2.5 टीआर का ले रहा हूँ। और एक 7 बात, लेंगे मतलब 7 या 8? एक बात, अगर समझो कि वर्कस्टेशन में मैं 2.5 टीआर का लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि सिर्फ वर्कस्टेशन में 2.5 टीआर की ही लगाना है, नहीं चाहिए 1 पॉइंट लगा सकते, 1.5 लगा सकते, 2 टीआर लगा सकते, 2.5 टीआर लग सकते, डिफरेंट डिफरेंट। इधर एक डिपेंड ऑन द एरिया। डिपेंडिंग अपॉन पीपल यूसेज। इधर मैं 2 टीआर का लगाया हूँ, इधर मैंने 2.5 टीआर लगाया हूँ, इधर 2.5, इधर 1 टीआर, तो डिपेंडिंग अपॉन पीपल। ओके, अभी देखो यहाँ पर कितना टीआर हो सकता, यहाँ पर ज्यादा से कम पीपल है, इधर की मैं 1.5 टीआर लगा सकूं। यस। सो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन पीपल यूसेज।
और यहाँ पर 1.5 टीआर लगा सको। कॉर्नर्स में हमेशा नहीं, इधर इधर तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैं बताता हूं आपको। तो इसमें क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन 1.5 इंटू 2 प्लस, सो 1.2 मतलब कितना होता, 3 टीआर। बाकी कितना है हमारा 15 टीआर। टू 2.5 इंटू 6 ले सकते हैं ऐसा। यस तो पूरा कितना हुआ अभी हमारा 18 टीआर। 18 देखिए यहाँ पे जितना आ रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए, इसको इक्वल मेंटेन करना है या ज्यादा जाना है, नीचे मत लीजिए हमेशा। ओके और 0.9 का है, 0.9 का तो हमारा अवेलेबिलिटी ना है, 1 इंटू 1 टन। यस यहाँ पर। और यहाँ पे ध्यान से लीजिए, अगर 1.3 है 1.5 1.3 है 1.5 लीजिए, 1.3 के 1.5 बिलो टन। है 1 टीआर लीजिए। यस ओके 1.3 है, अगर 1.3 के ऊपर है 1.5 लीजिए, अगर 1.3 के नीचे है 1 टीआर लीजिए। तो सेम ही ले सकते हैं इसको, और यहाँ पर भी सेम ले सकते हैं। इधर 1.5 इंटू 1 और 3.2 के लिए कितना ले सकते हैं इधर, कॉन्फ्रेंस रूम पहला देखना है। कॉन्फ्रेंस रूम है हमारा इधर। कॉन्फ्रेंस रूम के लिए कितना आया है 1.5 इंटू 2 ले सके। और ट्रेनिंग रूम, अभी देखिए ट्रेनिंग रूम इधर है, तो इधर एक यूनिट लगाना पड़ेगा और इधर एक यूनिट लगाना पड़ेगा। सो ये दोनों यूनिट के लिए सेम कैपेसिटी लेंगे या अलग अलग डिफरेंट लेंगे कैपेसिटी? सेम लेंगे सेम लेंगे। तो देखिए अब वो ट्रेनिंग रूम जहाँ पे नाम लिखा है, इधर तो नंबर ऑफ पीपल कम है, ओके तो इसके लिए ये कम ले रहा हूँ, ये मैं ज्यादा ले रहा हूँ। ट्रेनिंग रूम कितना है 3.5 टीआर का है। सो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, वन पॉइंट फाइव इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना हुआ हमारा 3.5 टीआर। ये वाला है 17.9, ऑलरेडी हम इधर किया है ऑलरेडी, कंट्रोल एक सी 2 का करो। 1.5 का। और ये वाला है, ये सारा ये दोनों है 1 टीआर का, तो ये वाला है 2 टीआर, 2 इंटू 1 मतलब 2 टीआर होगा 5.1। कॉफी टेबल तो यहाँ पर है हमारा, तो 2.5 का 2 लगा सके, 2.5 इंटू 2 होता 5 टीआर। और ये वाला है 3.6 कॉरिडोर हमारा है इधर। सो आप ही बताइए 3.6 के लिए कितना लेना है। एक 2.5 का और एक 1 टन का। ये तो इक्वल है ना, पीपल और एरिया डिस्ट्रीब्यूशन।
सर क्या सर 3.6 है ना, एक 2.5 का ले लेंगे और एक 1 टन का ले लेंगे, 3 टीआर का 3 का कम हो लेंगे। जाएगा। अभी कॉरिडोर का कितना है हमारा 3.6 का। सो 3.6 के लिए इधर 1.5, इधर 1.5, तो 3 टीआर हो जाता, जी सर, और एक 1 ले लेंगे फिर। और एक सेंटर में एक ले लेंगे। सर एक चीज पूछ रही है, ट्रेनिंग रूम में क्या बता रहे थे सर आप? बता रहा हूँ मैं। हो गया सर क्लियर है, वैसे ट्रेनिंग रूम वाले बता देना। तो ये कितना हो रहा है अभी? 4 टीआर। 4 3 4। अभी देखिए, यह है ट्रेनिंग रूम। ट्रेनिंग रूम में एक यूनिट इधर प्लेस कर रहा हूँ और एक यूनिट इधर प्लेस कर रहा हूँ, प्लेस। तो जब देखिए जहां पे रेड मार्क डाला हूं बड़ा वाला, वहां पे हमको पीपल कम है। जी अच्छा। तो जहां पे छोटा वाला रेड डाला हूं उधर तो पीपल ज्यादा है। तो उसके लिए वो एयर की डायरेक्शन के लिए आपने करा है ना ऐसा? हाँ, डायरेक्शन के लिए, कूलिंग कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सर एक चीज पूछनी है सर मुझे। हम्म सर हमारा ये हमारा कैसी यूनिट, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, ये सब वीआरएफ के अंदर आते हैं सर? वीआरएफ और वीआरबी के अंदर? दोनों भी एक ही है, वीआरएफ वीआरबी दोनों एक ही है, लेकिन अलग हाँ अलग नाम है। सर, और एफसीयू किस में आता है? एफसीयू ये भी हमको इसमें आ जाता वीआरएफ पर। अच्छा, ये एफसीयू भी वीआरएफ में आ जाता है? देखो, अगर कैसेट एसी बट हो, एफसीयू के स्प्लिट अंदर जो है एसी, ना, नहीं ये नहीं नहीं, वाटर सप्लाई लाइन के थ्रू होता है रुके सर। रुके रुके, अगर एफसी हो, कैसेट एसी हो, एएच हो, वॉल माउंटेड एसी हो, अगर नंबर ऑफ इंडोर यूनिट जो भी हो एक आउटडोर यूनिट से करने के लिए वो बोलते हैं कि वीआरएफ और वीआरबी। हाँ जी सर। समझे? अगर जी सर। इंडिविजुअली एक यूनिट को एक आउटडोर, एक यूनिट को एक आउटडोर, एक एफसी को एक आउटडोर यूनिट, एक एएच को एक आउटडोर यूनिट, उसको लगा दिया तो उसको बोलते डीएक्स, डायरेक्ट एक्सपेंशन। अच्छा तो सर फिर एक क्वेश्चन माइंड में हुआ है सर। अब हमारा एएचयू लगा हुआ है, हमारा एफसीयू लगे हुए हैं सर, ठीक है? ये दोनों क्या होते हैं, चिलर से ऑपरेट होते हैं, वाटर वो सप्लाई वहां चिल्लर्स, से आते हैं, चिल्ड वाटर। वो अलग है। तो सर ये वीआरएफ की वो हो गया, क्योंकि एक जगह से ही ऑपरेशन ऑपरेशन चल रहा है इनका। वीआरएफ में हम गैस यूज करते। भाई हाँ, वीआरएफ अलग है और चिलर अलग है, को दोनों मिक्स मत करो। नहीं नहीं समझ गया भाई मैं। नहीं नहीं, जो वो ऐसे पूछ रहे हैं ना वो एक सही है, उससे सही है, तो करे करे। अभी हाँ। वीआरएफ के लिए नंबर ऑफ इंडोर यूनिट एक आउटडोर यूनिट यूज करते। चिल्लर का कॉन्सेप्ट भी सेम है, नंबर ऑफ इंडोर यूनिट्स एक आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट होता कि उसमें चिल्लर, लेकिन चिल्लर में हम यस सर, यस सर। मीडिया जो भी है वाटर यूज करते, वाटर यूज करते हैं, और लेकिन इसमें वीआरएफ में रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट आर गैस। R410, R32, R12 जो भी हो, R34। R32, R34 नहीं, हाँ 32 सर। R32, तो वो यूज करते। समझ रहे? अभी चिल्लर का, वीआरएफ का और डीएक्स का। अच्छा सर, मैं मेरा पता है क्या सर, मैंने एफसीयू जहाँ भी देखे हैं ना, तो चिलर से ऑपरेट हुए देखे हैं वाटर सप्लाई के थ्रू। वो तो चिल्लर इस होता। वजह से मेरे माइंड में क्वेश्चन आ गया एफसीयू को लेके। अभी देखो, डीएक्स और वीआरएफ में हमारा मीडिया क्या है? रेफ्रिजरेंट। सर एक में रेफ्रिजरेंट है सर, यस सर। चिल्लर में क्या है? वाटर। वाटर है। चिल्लर में सक्शन और डिस्चार्ज दोनों पाइप होते ना, यस सर। दोनों पाइप सेम साइज होता है। மக்களை எப்படி வந்து மொட்டையாக்குது அப்படின்றதுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஒரு சூப்பரான எக்ஸாம்பிளாவே அமையும். நான் இந்த இன்சூரன்ஸ் चिल्लर में आदिश ने हाँ। सक्शन और डिस्चार्ज का पाइप दोनों भी एक ही साइज होता, यस सर। लेकिन वीआरएफ में अलग अलग होता, वीआरएफ और डीएक्स का। जब आप रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, पाइप साइजेस अलग अलग होता है। जब आप चिल्लर यूज कर रहे हैं, दोनों पाइप सेम होता। ओके। सर एक चीज और पूछनी है सर।
आपने सर वो मैक्रो डक्ट साइजर पढ़ाया था ना, हम्म, डक्ट साइज निकालने के लिए। तो सर आज मेरे पास एक ड्राइंग थी HVAC की, तो मैं उसको रिव्यू कर रहा था। तो मैं पता नहीं लगा पा रहा उसमें क्या था कि मेरे HVAC की पाइपलाइन निकली, वो डक्ट निकली हुई है, हम्म, वो आगे जाके फिर ब्रांचेस में बट गई, फिर उसके बाद फिर ब्रांचेस में बट गई, फिर उसके बाद फिर ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। हम्म। समझ रहे हो सर? और हमने जो डक्ट साइज निकाली थी, वो खाली हमने बस एक बार SCFM डाल दी और उससे इतनी साइज की डक्ट निकल के आ गई। अब हमें ये कैसे पता लगेगी ब्रांच जो है वो किस साइज की लेनी है? तो ब्रांच जो भी होता है डिपेंड आपका CFM। हाँ तो सर वही समझ में नहीं आ रहा है कि फिर वो किस हिसाब से हमें लेनी थी। वही डिपेंडिंग ये अपॉन डिफ्यूजर योर के हिसाब से CFM। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जहां जहां पे आपका CFM आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम्म, जहां जहां आपका CFM डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना CFM डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर CFM यू आर गोइंग टू सेलेक्ट योर डक साइज। और सर एक चीज और था, आपने बोला था कि 1500 से 0.8 पे हेड लॉस लेके चलेंगे, 1500 से नीचे वेलोसिटी होनी चाहिए। तो जो मैंने ड्राइंग देखी है, चाइना की ड्राइंग है, उसमें क्या बोलते हैं 1500 से ज्यादा पे उसका डक्ट साइज बन बन के निकल रहा है। वो मैं ऑलरेडी एक शीट शेयर किया हूँ ऑलरेडी, इंडस्ट्रियल के लिए 3000 तक ले सकते हैं। 25,000 CFM का था सर, उसमें मैंने हेड लॉस जो है ना, हम कम कर रहे हैं तो मतलब 0.8, मतलब वही 1500 से वही ज्यादा आ रहे हैं एक जो बार उसके मैंने हिसाब की डक्ट आपको एक साइज थी। शीट भेजा हूँ, आई थिंक सो। इंडस्ट्री का अलग शीट है सर। उसमें सर वो FPM यूजेबल यूज में नहीं आया ना सर, यूज में नहीं आई ना सर वो सीट हमारे, तो मैं उसका ड्राइंग का कुछ कर ही नहीं पाया। नहीं दे है वो शीट आपको, वो वाला ना मैं पर्सनली भेजा है ना, एक बार आपको नहीं भेजा आपने हूँ। शीट सर आपने शीट भेजी है वो मैंने देखी है, उसके उसमें आप अंदर क्या बोलते हैं AFC के कनेक्शन भी दिखा रखे हैं, उससे सेंसेबल, जिसमें सेंसेबल और लेटेंट हीट से स्टार्ट है, उसी शीट के बोल रहे हो ना सर आप? नहीं वो वाला नहीं। अच्छा। अभी मैं एक शीट शेयर करूंगा आप लोगों के लिए, तो उसमें मैं आपको फिर से क्लैरिटी से बताऊंगा। सर आप अभी कंटिन्यू कीजिए, ऐसे काफी सारे डाउट आते हैं सर, एक दिन डाउट सेशन रखना है सर। एक बार ठीक वो है भी सर, देख लिया। कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, हाँ हेलो। और हाँ हाँ। हाँ सर मैं एक चीज और, एक एक चीज से और परेशान था। मुझे हम्म, रिटर्न एयर डक्ट कब यूज करने, रिटर्न डिफ्यूजर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं सप्लाई दे रहा हूँ, मैं फ्रेश एयर दे रहा हूँ अभी के केस में, पर मुझे रिटर्न किस केस में यूज करनी है? रिटर्न डक था। हाँ तो अभी हमारा डक्टिंग चलने वाला है, डक्टिंग पे वो आपको और क्लैरिटी से समझ जा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ओके। और सर वेंटिलेशन जो है ना सर, वेंटिलेशन, सर हम्म। वेंटिलेशन में भी काफी सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं हुई। जैसे वेंटिलेशन के अंदर आपने सिर्फ डक्टिंग बताई, डक्ट साइजर से, ठीक है, करेक्ट। CFM निकालना बताया आपने, ठीक है। अब उसके अंदर सर इंड्यूट फैन लगाए जाते हैं बेसमेंट के अंदर, ठीक है। ये हमारा फायर एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है जो हमारा 70 डिग्री और 280 डिग्री सेल्सियस पर तो ओपन क्लोज होता है उसका फायर उसके डैम्पर। लिए तो वेंटिलेशन का तो हम, CO सेंसर लगाए जाते हैं सर, उसके बारे में सर मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वही अभी वेंटिलेशन तो पार्ट तो कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन अब तक हमें डक्टिंग का तो इन्वॉल्व नहीं हुए है ना। अभी डक्टिंग इन्वॉल्व नहीं करे ना, अभी डक्टिंग तो करना है मुझे अभी ऐसा हम। मुझे सर ऐसा लग रहा है कि वो वेंटिलेशन में सर अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ सही तरीके से, वेंटिलेशन जैसे में मैं कुछ अपनी क्लियर ड्राइंग नहीं, देखता हूँ। डिजाइनिंग तो पूरा हमारा हो गया है सारा का सारा, लेकिन अभी जो पेंडिंग है कि डक्टिंग, तो पेंडिंग है कि डक्टिंग, और डक्टिंग अभी VRF के बाद डक्टिंग चालू करने वाले हैं हम। मतलब सर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चालू करोगे पर हम अपनी ड्राइंग देख के ना उसको हिला भी नहीं पाते। नहीं आज नहीं मैं कम नहीं, से कम आप 4 घंटे लगा रहा हूँ हमेशा ये उसमें। ध्यान रखिए, जो भी वेंटिलेशन है, फ्रेश एयर है और सप्लाई एयर जो भी है, डक्टिंग का कॉन्सेप्ट तो सेम है। वो जो भी ले रहे हैं आपको, डक्टिंग का कॉन्सेप्ट तो सेम है, लेकिन जो डिजाइन कर रहा है, मतलब टॉयलेट, किचन और कार पार्किंग, ऐसा VRV VRF, उसका
कैलकुलेशन अलग है, मतलब डिजाइनिंग। अच्छा, अब सर ऐसे ही क्या बोलते हैं, आपने फ्रेश ईयर का 20% बताया था एक्स्ट्रा, अब मैं देख रहा हूँ तो 20% कुछ आ ही नहीं रहा। एक बार सर आपको थोड़ा सही तरीके से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि सर एक्चुअल प्रैक्टिस में हम देखते हैं ना तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है। अब यहाँ पे फ्रेश ईयर का इसमें अलग हो गया, वीआरवी के अंदर ठीक है, और उसके कार पार्क वो वेंटिलेशन के अंदर डिफरेंट था थोड़ा फ्रेश ईयर वही का। अभी अभी इसमें रिटर्न भी एयर मैं का पता ही बताया नहीं है कि कि हम कैसे निकालेंगे रिटर्न एयर। एक्चुअली जो भी इधर फ्रेशर कैलकुलेशन आ रहा है ना, इधर मिल रहा है ना हमको फ्रेशर कैलकुलेशन, जी सर। ये है एक्चुअल। एक्चुअल। ओके, ओके सर। डिपेंडिंग अपॉन पीपल, डिपेंडिंग अपॉन एरिया, ऐसा फ्रेशर कैलकुलेट करना है हम। लेकिन समझो कि इस बिल्डिंग में आपको नंबर ऑफ पीपल नहीं है, अगर आर्किटेक्ट आपको नंबर ऑफ पीपल नहीं दिया है तो 1 by 1 1 by 9 आप काउंट नहीं कर सकते ना। राइट सर, तो ये भी उसके सर एक लिए क्वेश्चन था मेरा। 15 to 20%, नॉट 15 to 10 to 20% फ्रेशर लेते हम। किसका लेंगे सर? फ्रेश सप्लायर के लिए, इधर बता जो देंगे हम हमारी आपको। सीएफएम, जो हमारी, यस यस, इधर हाँ आप एक बार थोड़ा जो भी हमारा CFM आ करके रहा है ना दिखाइए इधर, सर। जी सर। इसके लिए 10 to 20% लेते हैं। वो 10 to 20% कब लेते हैं? अभी समझो कि इस एरिया पर, सारा एरिया पर नंबर ऑफ टाइम डोर्स ओपन कर रहा है और क्लोज कर रहे हैं, डोर ओपन कर रहे हैं क्लोज कर रहे हैं, तो एयर लीकेज होगा। यस सर। तो एयर लीक हो जाने की वजह से आप मोर CFM सेंड करना है इनसाइड द रूम, यस सर। तो उसके लिए 20% लेते हैं। अगर मतलब टोटली जैसे मेरा 100% 100 सीएफएम आ रही है तो कितनी फ्रेश एयर लेंगे? वही परसेंटेज ले रहे हैं, 10 to मतलब 20%। 20% कितना कितना होगा सर उसका? 20% 100 मतलब पर 100 के लिए 20%। 20% कितना होता? 20 होगा सर, हाँ, 20 सीएफएम। 20 CFM होगा। तो सर वहाँ पे 700 की 450 आ रही है, ये तो 50% 60% के आसपास होगी अभी देखो कितना है एक्चुअल आपका, प्रैक्टिस में। कितना है ठीक है फ्रेशर, सर। आप सर सप्लायर आपका 7179 717। 79 जो हमारी दो टोटल सीएफएम है। हाँ, तो इसके लिए समझो कि कितना फ्रेशर लेना चाहते हैं आपको, 10%, आप 15%, 20% बोल रहे हो सर, इसका 20% करो, 0.02 से मल्टीप्लाई। इंटू 0.2। 0.02 से मल्टीप्लाई करो सर, 20% निकलेगा इसका। हाँ, 0.2 मतलब 20% निकलेगा आपको, कितना आ रहा है? सर सर उसमें 1435 आया। हाँ, तो 1435 CFM आप फ्रेशर ऐड कर रहे हैं। किस में ऐड कर रहे हैं सर? ये अब वहाँ पे तो 4 के करीबन आ रही है सर। अभी अभी रुकिए, अभी रुकिए, आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिला अभी तक। 7179 आपका सारा है ना टोटल? यस सर। सप्लाई एयर है 7179, रिटर्न एयर होता है कि आपका इंटू 0.8, कितना हुआ आपका रिटर्न एयर? हाँ,